वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट। सो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि पार्ट 1 है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। सो आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 2 देखें, क्योंकि बोथ वीडियोस आर द इंटरकनेक्ट टू ईच अदर। सो आज हम जो क्लासेस में करने वाले हैं दैट इज़ पार्ट 2। So part 2 basically describe the classification of matter and the properties, change the properties. First one is classification of matter, right? So जब भी हम मैटर के क्लासीफाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड उनके बिहेवियर और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं। The classifications form the foundations for all the chemical analysis and synthesis. Generally, matter can be classified as mixtures and pure substance. So, matter दो टाइप के होते हैं, पहला है mixtures and दूसरा है pure substance. तो फर्स्ट हम मिक्सचर की बात करते हैं. What is mixture? Now the mixtures contain particles of two or more substance, right? दो या दो अलग अलग तरीके के भी सब्सटेंस हो सकते हैं और एक ही सब्सटेंस भी हो सकते हैं। अगर उन दोनों को मिक्स किया जाए तो मिक्सचर का फॉर्म होता है। एक निश्चित रेशियो में अगर मिक्स किया जाए तो मिक्सचर बनता है। तो उसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशंस इन वाटर, एयर, टी, एक्सेट्रा ऑल आर मिक्सचर्स। जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर्स आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज homogeneous mixtures. अब homogeneous, as a word suggests, that the homogeneous means the same compositions, or you can say the uniform compositions throughout the compound. So like sugar solutions and air are the examples of homogeneous mixtures. And another type of mixture is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixtures composition is not uniform, right? Sometimes it will be different component are visible. For examples, mixture of salt and sugar, grain and pulse along with some date. Often some stone pieces are mixed in pulse now. So मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजेनियस में जो कॉम्पोजिशन होता है दे आर नॉट इन यूनिफॉर्म, राइट? Then again we are talking about the pure substance. What is the pure substance? Now pure substance have characteristic different form of mixtures. Constituent particle of pure substance have fixed compositions. Copper, silver, gold, water and glucose are the some examples of pure substance. Again, pure substance is classified into elements and compound. So the pure substance are classified, one is element and another is compound. The element is classified as atoms. Just you see the atoms, or you can say the atom of hydrogen, atom of oxygen, atom of nitrogen, copper and sodium. So these are the atoms of different element, and sometimes two atoms are combined like a form a molecules. Here is the element, both atoms are same, just like the examples of H2 hydrogens. The H plus H equals to H2, so they form the molecules. The same composition is called the element. एक ही जो element है वो दो बार combine कर रहा है और molecule बना रहा है. And the compounds are two types. First one is molecules and second one is ions. The molecules that time is make a compound. हमने बताया कि जो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही एलिमेंट और एक ही एटम से बने हुए हैं, बट हियर कंपाउंड्स आर मेकिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लाइक H2O, दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम के साथ बना हुआ है। सेम एग्जांपल्स लाइक CO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दो ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। तो ये जो क्लासिफिकेशंस है, ये जो क्लासिफिकेशंस मिक्सचर्स, देन द pure substance are classified into two types, elements and compound. And then elements are classified atoms and molecules with the same type of atoms, and compounds, the classifications of molecules and ions. Molecules are different type of elements and ions are
just like NaCl, Na plus and Cl minus. Then what is the physical and chemical properties? Generally physical properties और chemical properties ये मैटर्स के प्रॉपर्टी है. अगर जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो हम इसके फिजिकल वे में बात करेंगे. जैसा कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कुछ समय के लिए प्रॉपर्टीज अपने फिजिकल रूप चेंज कर देती है और हम उसे वापस से फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे ला सकते हैं, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट. एक बार जो इनिशियल स्टेट में हम उसे फाइनल स्टेट पे नहीं ला सकते, दैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड देयर आर सम chemical reactions is happen. So chemists describe, interpret and predict the behavior of substance on the basis of knowledge of their physical and chemical properties which are determined by careful measurement and experiment. See, अगर हम एक ही एग्जाम्पल को अगर अच्छे से समझे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा फिजिकल के प्रॉपर्टीज है और कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज है. आपको स्क्रीन में दिख रहा है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन ए वुड. अगर हम एक लकड़ी लेते हैं, राइट, अब हम उसको फिर जलाना स्टार्ट करते हैं, देन इट विल आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्टेड इनटू एश. दैट मीन्स द फिजिकल फॉर्म ऑफ वुड इज वेरी हार्ड एंड then it will be converted into the pile of ash. So ash cannot be converted into wood further. So if the physical properties changes and initial and final state are not same, then it is a chemical reaction. जैसे आप एग्जांपल पे देख रहे हैं कि एक बार लकड़ी को हमने जलाया और लकड़ी जलने के बाद वो राख बनी, तो राख को फिर से हम लकड़ी में कन्वर्ट, वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये हमारा फिजिकल के प्रॉपर्टीज कहलाएगा, ये हमारा सॉरी ये हमारा केमिकल चेंजेस कहलाएगा. एंड वही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप देख सकते हैं वन लेमन, होल लेमन इज कटिंग इनटू स्लाइसेस एंड देन स्लाइसेस आल्सो लेमन. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैन नॉट बी चेंज. वो पहला भी लेमन था, कट करने के बाद स्लाइस के बाद भी वो लेमन ही है. तो मतलब ये इस तरह की प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती है सिर्फ फिजिकली रूप में, तो हम इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आते हैं. इसी तरह देर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस. यू सी कंबंशन, जो हम लकड़ी जलाते हैं, दिस इज द केमिकल रिएक्शन बिकॉज एक बार लकड़ी जल जाने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट होती है और ऐश को फिर हम लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. जस्ट लाइक द रोटेन फ्रूट्स. एक बार जैसा कि जो फ्रूट्स है अगर उसमें कीड़े पड़े और धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाए तो वो फिर वापस से इनिशियली स्टेट में नहीं आ सकते. रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में जब रस्टिंग होती है तो वो धीरे धीरे करके उनकी वेट इंक्रीज होती है बट उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, तो वो फिर से पहले स्ट्रेंथ में नहीं आ सकती, फिर से पहले प्रॉपर्टीज में नहीं आ सकते हैं. लाइक द डाइजेशन, जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट करके एज एक्सक्रीशन की जैसे निकल जाती है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल चेंज. एंड द फिजिकल चेंज, आइसक्रीम मेल्ट होता है, आप उसको अगेन फ्रिज करके आप अगेन उसको आइसक्रीम की शेप दे सकते हैं. मतलब बोलने का मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनिशियली और फाइनल, अगर आप फाइनल इनिशियल स्टेट और को वापस से आप फाइनल स्टेट को आप वापस से इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, देन इट इज़ द फिजिकल चेंज. लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप पानी कुछ समय के लिए गर्म कर दो और जैसे पानी गर्म होती है तो वो वेपर होती है, अगर आप उसके ऊपर कुछ ढक्कन रख दो, again it will convert it into water. Like the chopping of fruits, chopping of vegetables. So these are the examples of physical changes, right?